Hello, agriculture engineering students and my dear all friends. And I warm welcome all stars who have joined this live session to guide their juniors in the last month of preparation. It is great moment for all aggregate aspirants because today we are going to listen live experience of GATE 2021 toppers and their achievements. For this, I have invited last year AZ GATE toppers and two most successful agri engineers through GATE. Their names are All India Rank 1 Udesh Shahu, All India Rank 2 Asutesh Dwivedi, All India Rank 3 Silas Khot, All India Rank 4 Sudhir Kumar, All India Rank 8 MB Ram Prakash, All India Rank 9 Harshal Banjari, All India Rank 29 Anjali Kumari, and celebrity of this live session, Kajal and Ashwini Hughes. Many congratulations for your biggest success through GATE. Dear all friends, the main aim of this live session is all about concerns, emotions, pressure during last month of preparation because these all were happening with your senior also and how they were able to manage these all emotions, distractions. Actually in this session they are going to discuss with you. So this is completely exam pressure management live session and they will share their experience. So we start this session because this is short session, this is exam timing and we are not going to take your more time. So we will try to complete these all discussions in short duration. So without delaying, first I invite Kajal to say something about this month of preparation. Thank you, sir. Thank you for providing this platform. And hi, everyone. I am Kajal Chandrakar and hope you all are doing great. I graduated in the year 2020 from Jawaharlal Nehru Agricultural University, Jabalpur, and currently I am pursuing MBA from NITI Mumbai, National Institute of Industrial Engineering. So I can understand, guys, today I'll talk in English, okay? Hindi and English both, so it would be easy for all to understand. So first thing that I want to tell you guys that when you are writing the exam, there are three things that is very important. बहुत important है तीन चीजें when you are writing the exam. First one, your accuracy. Be very accurate and as accurate as you can. Because see, this is not the exam, like तुम्हारा knowledge ये सब तो check होगा, but ये knowledge के साथ साथ the one important thing is to have how much accurate you have because इसमें negative marking भी होता है. Second, your time management like तुम्हारे अपने strength के according you have to make like strategies कि some people are very मतलब good in writing aptitude, some people are good in technical questions, so basis your strength and weakness पहले strategy बना लेना कि पहले मुझे एप्टीट्यूड सॉल्व करना है कि पहले टेक्निकल सॉल्व करना है, 1 मार्क सॉल्व करना है कि 2 मार्क सॉल्व करना है. सो व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी, मैं टेक्निकल सॉल्व करती थी पहले पहले मैं देख लेती थी कि सबसे इजी क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करती थी, देन थोड़ा डिफिकल्ट वाला वो सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करती थी, तो ऐसे करके 3 राउंड्स में मैंने अपने एग्जाम दिए थे एंड दिस इज हाउ आई वाज एबल टू मैनेज द टाइम एंड आई कैन टेल यू दैट मेरे एक भी मार्क्स नेगेटिव नहीं हुए थे ड्यूरिंग माय गेट एग्जाम. So this kind of accuracy and time management you will need. And the third thing is that your judgment again, and this judgment would be based upon your strategy.
क्या मुझे पहले करना है, क्या मुझे बाद में करना है, that you have to see according to your strength and weaknesses. So there are three things, and always keep in mind your accuracy, your time management, and your judgment. And at this last moment, एक बार देख लेना, सारे formulas एक बार revise कर लेना, and when you are writing the exam, पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना कि क्या रेडियस पूछ रहा है, कि डायमीटर पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है, कि सेंटीमीटर में पूछ रहा है. दिस इज वेरी, मतलब बहुत छोटी चीजें हैं, बट इट क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. बहुत लोगों के नेगेटिव हो जाते हैं इसी चीजों में. मीन्स सर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सम पीपल की डायमीटर की जगह रेडियस कर दिया, रैंक 1 से 3 पहुंच गया, एंड दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, यू नो. तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे ड्यूरिंग द प्रेशर सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि डायमीटर को हमने रेडियस पढ़ लिया, जब बहुत रेडियस में सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो ये उस टाइम पे नहीं होना चाहिए. बिकॉज सी जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, उसमें एक यही कैपेबिलिटी होती है कि प्रेशर सिचुएशन में भी आप नॉर्मल चीजों को कैसे हैंडल करते हो. दिस इज द स्मार्ट, दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ स्मार्ट पीपल. एंड जो गेट एग्जाम है, ये तुम्हारा मीन्स अब तुम्हारा नॉलेज वगैरह उतना चेक नहीं करेगा, बिकॉज सिंस यू गाइज नो दैट यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एक एडेड एडवांटेज रहता है. एंड अगर तुम लोगों ने सर के टेस्ट वगैरह अच्छे से दिए हैं, सो एक लेवल रहता है क्वेश्चन का कि उससे डिफिकल्ट तो आई गेस नहीं आएगा पेपर. सो अगर तुम लोगों ने अच्छे से कर लिया है सारे क्वेश्चंस जो भी टेस्ट सीरीज में एंड जो भी क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो यू आर कंपैटिबल इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन. बट वहाँ पे गेम यही चीज रहता है कि जो तुमने पढ़ा है वहाँ पे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस और द प्रेशर मैनेजमेंट. तो वहाँ पे वो यही चीज चेक करते हैं तुम्हारा. सो ऑलवेज मेंटेन योर कूल, बी काम. हमेशा मतलब सोचना कि यू वॉन्ट गिव अप नो मैटर वॉट. गिव अप मत करना कि अगर 4-5 क्वेश्चन एक साथ नहीं बन रहे तो चलो अब नहीं हो पाएगा, ये मत सोचना. बिकॉज सी तुमसे नहीं बन रहा तो बाजू वाले से भी नहीं बन रहा होगा कि तुमने भी उतना ही पढ़ा है, अगर सबने अगर अच्छे से पढ़ा है तो. सो एट द एंड ऑफ द डे, ड्यूरिंग द एग्जाम, डोंट गिव अप. इट नो मैटर व्हाट, डोंट गिव अप एंड नेवर डाउट योर कैपेबिलिटीज. अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आता है तो जस्ट रिमेंबर कि तुमने कितनी तैयारी की है उस टाइम. So now you have to give it your best, and believe me, if you are giving your best now, that is more than enough. So that was my strategy during the exam and before the last month. And other people would also share their experiences, and at the end you can ask if you have any doubt. We would be like, we are open to solve, and we'll try to solve all your queries and doubt. So that's all from my side. Thanks for sharing your experience. Now I invite Ashwini Hughes. Yes, sir. Thank you, sir. Am I audible correctly, sir? Yes. So, hello guys, I am Ashwini Hussain. I've graduated in 2020. I'm from Dr. Punjab Rao Deshmukh Krishi Vidyapith Akola and now in NITI. So, I know you all are in good, in pressure, and you all are doing well, right? Because जैसे last time आ जाता है तब सब हमारा almost preparation हुआ रहता है. Just इन दिनों तुम क्या करना चाहते हो, तो दैट इज मोर लाइक हाउ फोकस्ड यू आर. बिकॉज अब ऐसा है कि नया कोई कंसेप्ट मत पढ़ो, बेटर यू गो विथ प्रैक्टिसिंग विच यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, लाइक सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन पेपर्स. और एग्जाम के पहले पूरा प्रिपेयर्ड रखो कि लाइक तुम्हें, जैसे कि काजल ने 3 राउंड बताया, आई ऑल्सो अप्लाइड द सेम 3 राउंड स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग द गेट पेपर. तो सेम स्ट्रेटेजी में तुम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो कि तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, एंड वेयर यू आर गेटिंग लाइक व्हाट काइंड ऑफ डाउट्स यू आर गेटिंग इन दैट पेपर. मतलब डिफिकल्टी क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है उसमें तुम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कितनी तरह अच्छे से कर पा रहे हो, व्हाट इज योर एक्यूरेसी देयर. सो ये चीजों पे थोड़ी चीजों पे फोकस करो एंड इजी थोड़ा पीस बनाए रखने की कोशिश करो. लाइक फ्रॉम नाउ यू हैव टू मैनेज योर पीस, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर ओन बैलेंस देयर. बिकॉज जैसे ही लास्ट टाइम एग्जाम के दिन आता है, उस टाइम तुम कुछ नया नहीं करने वाले हो. You are doing all the things which you have already practiced. So Yes. करो. जैसे कि अब टेस्ट सीरीज हुआ है तो आरके सर के टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हुए रहते हैं. मे बी क्वेश्चंस उसी टाइप के आते हैं, वहां पे 1-2 नंबर चेंज हुए तो वहां पे आपको चेक भी करना होता है कि हाँ कोई नंबर चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, और उस पे सॉल्व करो. सो जस्ट रिमेम्बरिंग एंड सॉल्विंग इज गुड थिंग rather than going for critical thinking and analyzing the questions which is new for you. So better solve those questions which you are familiar with for the first time. Second, go with the round where you think you can do it in a better way. So let it for the second round. And in third round, go for the critical thinking questions which are totally new for you. उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा.
और जैसे कि काजल ने 3 स्टेप मैनेजमेंट बताया है, तो उसी मैनेजमेंट मतलब वी ऑल आर ग्रोइंग इन द सेम वे। तो यही है, एग्जाम में बस एक है कि आपको पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हो तो चांसेस है कि यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स देयर। जैसे कि छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, बहुत सिली मिस्टेक्स होती है, बट कभी कभी ऐसे भी मिस्टेक्स होती है। आई कैन से लाइक मैंने एक गलती की थी जिसमें मेरे 2.66 गए थे। दैट वाज लाइक मैंने इनकरेक्ट ऑप्शन चूज किया गया था लास्ट में, लाइक टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो लास्ट के 5 मिनट्स में ये भी गलतियां हो जाती है, इससे बहुत लंबा डिफरेंस पड़ सकता है। सो दिस इज ऑल्सो द थिंग जो आपके रैंक पीछे कर सकती है। तो बस यही है, आपकी पूरी मीन्स लाइक वेयरएवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन उसको ही 100% दो। ईच क्वेश्चन को 100% देते जाओगे तो अपने आप रिजल्ट बनता जाएगा। तो दिस इज ऑल द स्ट्रेटेजी है। Thanks, Ashwini. Dear students, I suggest you to listen each and every words of your senior. Okay. Now I invite GATE 2021 AIR1 Uday Sahu. Uday Sahu. Hello. Yeah. Yes. Good evening, all. This is Udesh Sahu. So I'm going to share my strategy during the last 2 weeks. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। So मेरा जो सेकेंड लास्ट वीक था मेरा, मैंने जहाँ तक मुझे याद है, हाँ मोस्टली मैंने फुल मॉक टेस्ट दिए ही थे। लगभग मैंने 4-5 टेस्ट दिए थे और मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे जितना भी स्ट्रेच करना है अपने आप को वो 31 जैन तक बस करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक भी टेस्ट नहीं देना है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मतलब औरों की स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि बस यही है तो इसी की स्ट्रेटेजी पे जाना चाहिए। तो मेरा ये था कि मुझे 31 तक जितने भी मॉक टेस्ट लगाने थे मुझे उतने लगाने, और फिर मेरा जो लास्ट वीक था मैंने उसे एक अच्छे प्लान वे में डिजाइन किया था कि पहला दिन मेरा इस चीज के लिए फार्मेसी के जाएगा, दूसरा दिन मेरा सॉइल वाटर के लिए जाएगा, तीसरा इरिगेशन के लिए जाएगा। और उस टाइम पे मैं सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहा था और जो फॉर्मूले मैंने बनाए थे मैं उन पे फोकस कर रहा था। और मैंने अपने आप को ज्यादा बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं किया था। मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था न्यूमेरिकल्स, मैंने अपने बहुत से टेस्ट दे चुके थे और उसमें मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था कि, और मैं अपने परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड था। तो ये था मेरा लास्ट का कुछ प्लान। हाँ, लास्ट का जो लास्ट दिन था मेरा, मैंने उसमें मैं अपनी गलतियों को काफी अच्छे से हाईलाइट करके रखा हुआ था ऑलरेडी। और मैंने लास्ट दिन बस उन गलतियों को ही एनालाइज किया था कि मैं मोस्टली क्या गलतियां करता हूँ और मैं एंड दिन में क्या कर सकता हूँ ताकि ये गलतियां मेरी मिनिमाइज हो। अब जो मेरा लास्ट दिन था ड्यूरिंग द एग्जाम, मैंने क्या किया था कि मैंने अपने एग्जाम टाइम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जो था मेरा, मैंने 10 मिनट का रखा था और उस पार्ट में मैंने ये देखा था कि मैं क्वेश्चन पेपर को कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, मतलब पेपर कैसा है मेरा, टफ है या इजी है। सो मतलब मैंने 10 मिनट ये रखा था कि मुझे हर क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या है, ये मैंने कहीं देखा है या नहीं देखा है, ताकि मैं आगे का स्टेप देख पाऊँ मेरा कि मेरे क्या स्टेप्स होने चाहिए। दूसरा जो था मेरा 20 मिनट का हाफ था, मैंने उसमें मोस्टली एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन लगाने थे। एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन जितने हो पा रहे थे मुझसे 20 मिनट के अंदर जितने हो रहा है मुझसे, मैंने उतना किया। उसके बाद जो नहीं बन रहा एप्टीट्यूड मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरा जो 1 घंटे का टाइम था, मैंने उसमें मोस्टली 1 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। लगभग मैंने अपने 25 क्वेश्चन का टारगेट रखा था और समथिंग उतना मैं कवर भी कर चुका था। और लास्ट का जो मेरा 1.5 घंटे का टाइम था या जितना भी टाइम था 15 मिनट पहले तक, उसमें मैंने सिर्फ मोस्टली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ट्राई किया था और 15 मिनट जो था वो मेरा रिव्यू के लिए रखा था। तो ये मेरा कुछ टाइम टेबल था ड्यूरिंग द एग्जाम। सो अगर आपको ये ठीक लगे तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। बट एज तुम्हारे सीनियर्स ने भी जैसा बताया, उनका स्ट्रेटेजीज भी काफी अच्छा है, आप उनको भी जा सकते हो। और अगर मेरा सही लगे तो इसको देख लेना। बट ये है, ये थोड़ा अटैकिंग है क्योंकि से आप अपने लिए टाइम बॉन्ड बना के रखे रहे हो और फिर उस पर कर रहे हो। मैंने, अगर मैं सही से बोलूं तो मैंने क्वेश्चन काफी सारे लगाए थे। लगभग मैंने 60 क्वेश्चन लगाए थे और लगभग मेरी 15+ मिस्टेक्स थी, तो ये काफी थी। बट हाँ, ये औरों से कम थी। एंड और ये है कि लास्ट टाइम अपने आप को रिलैक्स रखो यार, यही कहूंगा कि जितना रिलैक्स रख सकते हो अपने आप को उतना रिलैक्स रखो, काम रखो। और ज्यादा मत सोचो, अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो कि भाई उसने कितना बेहतर किया मुझसे, मैंने कितना किया। बस अपने आप पे फोकस रखो, काम रहो। जो भी आपने परफॉर्मेंस पढ़ चुके हो बहुत है, वो बहुत है। आप
और बस उसी जो आपने पढ़ चुका उसको और अच्छा करने का कोशिश कीजिए और फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए। हाँ, क्वेश्चन अगर जब भी आप पढ़ो क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िएगा कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है या 1 मार्क्स का है, और कितना डिजिट्स वो मांग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम ये कंफ्यूजन हुआ था हम लोगों को। 2 मार्क्स 2 इंटीजर डिजिट्स पूछा, हमने 3 डाल दिया, तो ये गलतियां ना कर रहे हैं आप। 2 डिजिट बोल रहा है तो मोस्टली 2 डिजिट का ही दे, और राउंड ऑफ अगर आप कर रहे हो तो राउंड ऑफ मोस्टली क्वेश्चन के एंड में करो, बीच में बिल्कुल मत करो। और पैड का आप सही से यूज कर सकते हो कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को कुछ कुछ स्टेप्स में बांट सकते हो, और उस स्टेप्स के हर एक आंसर को आप लिख के रख सकते हो, अपने खुद के कुछ सिंबल्स बना सकते हो ताकि मुझे इस पर रिव्यू करना है या नहीं करना है। ये कुछ कुछ स्ट्रेटजीज थी मेरी जो मैंने बना के रखा था, और बस ये था मेरा। ओके ओके, थैंक यू यश साहू। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको जो है ना आप लोग माइंड में रखेंगे कि लास्ट मोमेंट में अपने आप को फुल रिलैक्स रखना है ना, कोई भी प्रेशर नहीं आने देना है। 31 जनवरी के बाद तो पूरी तरह से रिलैक्सेशन मोड में जानी है, केवल फॉर्मूला आप रिवाइज कर सकते हैं। नो नीड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम और एनी न्यू प्रॉब्लम्स। अपने आप को लिमिट रखे, इस मंथ तक जितना आपको टेस्ट करना है, 2 मॉक टेस्ट और मैं इसी मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, तो आपका टोटल 10 मॉक हो जाएंगे, तो सफिशियंट है। लास्ट मोमेंट में जो 6 डेज आपके बचते हैं फरवरी के, तो उसमें आप लोग केवल फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, अगर आप पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं तो। ओके, अदरवाइज जो है ना अपने प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो, लेकिन हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 5 to 6 डेज बिफोर अपने जो प्रिपरेशन है, जो ये प्रैक्टिस करके उसको स्टॉप कर देना चाहिए, उससे डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद उदय साहू फॉर शेयरिंग योर experience and guiding your juniors. Thank you so much. Now I invite All India Rank 2 आशुतोष द्विवेदी। इनका आप लोग जो ना रिव्यू सुनिएगा, इनका अपना जो स्ट्रेटजी था ध्यान देके सुनेंगे आप लोग, काफी चीज लर्न करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आशुतोष अपना जो है ना आप व्यू शेयर करें। Hello everyone, my name is Ashutosh Dwivedi, and first of all, congratulations to Kajal ma'am for the placement. Like, she's my senior from JNKVV. I had graduated in 2021, and currently I am pursuing Masters of Management from Indian Institute of Science, Bangalore. Throughout the meeting, I would be bilingual, like I would be talking in Hindi as well as in English. तो अगर किसी को कुछ doubt होता है तो please respond to whatever I say. So talking about the last 2 weeks strategy about the GATE exam, just like Udesh said, मेरा strategy थोड़ा अलग था about the exam. In the last 2 weeks, the last week I had kept for my mocks as well as the formulas. Like मैं literally मैं formulas रट रहा था, क्योंकि ये practical चीज है। आपको क्वेश्चन करते समय फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, आपको फॉर्मूला आपकी जबान पे होना चाहिए, जिसको आप डायरेक्टली पेपर पे लिख सको एंड देन पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट व्हाटएवर इज नीडेड। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द सेकंड लास्ट वीक में मैंने सर्विंग एंड लेवलिंग पढ़ा था, बिकॉज मेरा ये शुरुआत से टारगेट था कि मैं सेकंड लास्ट वीक में सर्विंग एंड लेवलिंग पढ़ूंगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े ट्रिकी होते हैं एंड उसमें थोड़ा टाइम देना होता है और उसको मैं ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर सकता हूँ। तो वैसे भी अपना कोर्स इतना है, 4 ब्रांचेस होती हैं अपनी, सॉइल वाटर, फार्म मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग एंड सब कुछ। तो साथ ही साथ एक सर्विंग एंड लेवलिंग एज अ होल कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत टफ होता है। तो मैंने सेकंड लास्ट वीक के लिए सर्विंग एंड लेवलिंग रखा था और उसका जस्ट एक ब्रॉड ओवरव्यू लिया था कि हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि नॉर्मली 1 या 2 मार्क का ही क्वेश्चन आता है सर्विंग एंड लेवलिंग का। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सर्विंग एंड लेवलिंग पढ़ लिया था लास्ट वीक में। एंड देन जो सेकंड लास्ट वीक में, एंड देन लास्ट वीक में मैं फॉर्मूलाज रट रहा था और मॉक्स दे रहा था। एंड while giving the mocks, just like everybody, मेरी भी कोशिश यही होती थी कि I would prefer coming on the top, like टॉप पे रहना किसको नहीं पसंद है, अपना रिजल्ट फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक देखना किसको अच्छा नहीं लगता। बट सिंस कंपटीशन अच्छा था हमारे टाइम पे, तो वो रैंक्स टेस्ट में ऑब्टेन करना टफ हो गया था। तो मेरा कभी ये नहीं हुआ कि अगर टेस्ट में अच्छा नहीं आ रहा है तो आई वुड लूज माई मोरल और मैं बाद में पढ़ाई छोड़ दूंगा या मेरा मोरल डाउन हो जाएगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। मेरा अप्रोच ये होता था कि ठीक है, आज मेरा दिन नहीं है कल मेरा दिन होगा, आज मेरा दिन नहीं है कल मेरा दिन होगा। एंड जब लास्ट मॉक दिया तब भी रैंक कुछ खास नहीं आई थी, तो आई सेड कि आज मेरा दिन नहीं है, गेट 2021 जिस दिन होगा उस दिन मेरा दिन होगा।
So it was my approach. And going to the question paper, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो मेरा इंग्लिश और एप्टीट्यूड मेरा हमेशा से स्ट्रांग था। तो मेरी अप्रोच ये होती थी कि 5 से 7 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में मेरे को 15 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं पूरे, जो कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड से आएंगे। वाइल ऑन द एग्जाम डे मैंने 7 मिनट में अपने सारे मैथ्स और एप्टीट्यूड और इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। मैंने उसके बाद बाइफरकेट किया था कि 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें मुझे मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट्स देने हैं। अगर 1.5 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन ले रहा है तो तुम्हारी अप्रोच रॉन्ग है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो। सेकंड जो अप्रोच थी, जो 2 मार्क का कोई भी क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 3 मिनट देने हैं। अगर आप 3 मिनट से ज्यादा दे रहे हो किसी क्वेश्चन पे तो टेक्निकली भी आप गलत जा रहे हो, क्योंकि आप टाइम ओवर शूट कर जाओगे। और अगर आप गलत नहीं भी जा रहे हो, आप सही अप्रोच में भी जा रहे हो, तो आप एक लंबा रास्ता चूज कर रहे हो अपने उसी आंसर को लाने के लिए, जो आप एक छोटे रास्ते से भी ला सकते हो। क्योंकि 2 मार्क के लिए वो आपको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा कि आपको 3 पेज भर जाए और आपके 10 मिनट लगे उस क्वेश्चन में। वो बस एक क्वेश्चन में ट्रिक होती है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट ट्रिक। एंड कभी भी क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में हो तो मैं कभी ये रिव्यू नहीं करता था क्वेश्चन पेपर को। जो लोग बोलते हैं, कई लोगों की स्ट्रेटेजी अलग होती है, मेरी अलग थी। आई वाज ऑलवेज ऑफेंसिव टुवर्ड्स द क्वेश्चन पेपर। मैं हमेशा क्वेश्चन पेपर को ऐसे अप्रोच करता था कि जो क्वेश्चन आएगा देखूंगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन पेपर को रिव्यू नहीं करता था कि मेरे से कौन सा सेक्शन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। जैसा क्वेश्चन पेपर दिया है मैं जस्ट उसी वे में उस क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है किसी भी क्वेश्चन पेपर को, इंक्लूडिंग डेट, कि आप जब क्वेश्चन पेपर में जाओ तो भले आपसे पिछले 10 क्वेश्चन ना बने हो, बट आप जो 11th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो अपने पेपर का, वो आपको इस स्टेट ऑफ माइंड से अप्रोच करना चाहिए इस क्वेश्चन का कि मेरे से पिछले पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस बने हैं, बिकॉज दैट डजंट डिमोटिवेट यू। अगर आप अपने मन में ये रखोगे कि पिछले 3-4 क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने हैं, तो इट वुड इनडायरेक्टली अफेक्ट द क्वेश्चन दैट यू आर डूइंग एट प्रेजेंट। एंड लास्टली, अगर आपसे लगातार कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो सेकेंडली कीप योर काम, थोड़ा ब्रीथ करो क्वेश्चन पेपर के टाइम में, आराम से 1 मिनट दो अपने आप को स्टेबलाइज करने में। व्हेन आई वाज डूइंग माय पेपर तो मैंने अबाउट 1 आवर 15 मिनट्स में 37 क्वेश्चंस किए थे। 37 भी नहीं, 35-32 क्वेश्चंस मैंने किए थे। एंड उसके अलावा मुझे पेपर में कुछ नहीं बन रहा था, फर्स्ट अप्रोच में मुझे कुछ नहीं बन रहा था। तो मैंने ये मान लिया था कि अगर ये क्वेश्चंस मुझे नहीं बन रहे हैं तो इस पूरे हॉल में किसी को नहीं बन रहे होंगे, एंड आई हैव टू जस्ट डू माय बेस्ट। और क्वेश्चन पेपर 2021 बहुत ही अनकन्वेंशनल था एज कंपेयर टू पूरे 20 इयर्स के जो लास्ट क्वेश्चन पेपर्स थे। तो मेरे को ये अप्रोच थी कि अब मुझे एक्यूरेट करना है, भले मैं कम क्वेश्चंस करूं, मुझे क्वेश्चंस सारे एक्यूरेट होने चाहिए। एंड मैंने 47 क्वेश्चंस किए थे एट द एंड, जिसमें से मेरे 3 या 4 गलत थे बस, एंड दैट डिसाइडेड माय रैंक। सो क्वेश्चन पेपर के टाइम पे भी आपको स्टेबलाइज रहना है। वो 3 घंटे आपने पूरे 1 साल में क्या प्रिपरेशन की है, दैट इज वन थिंग, एंड उस 3 घंटे में आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, दैट इज अनदर थिंग। और मेन इंपॉर्टेंस उसी 3 घंटे का होता है कि आप अपने मन को कैसा रखते हो, क्योंकि प्रिपरेशन सारे लोग एक ही कर रहे हैं। आपकी जस्ट बस ये होगा कि आप सब लोग एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, तो नॉलेज जो है वो सबको एक जैसी मिल रही है, प्रिपरेशन आपकी सबकी एक जैसी है, टाइम पीरियड सबको आपको एक जैसा लगा है। The thing that differentiates you from others कि आपका state of mind कैसा है in the whole preparation as well as in the whole exam. That's all from my side. Thanks, Ashutosh Dwivedi. The most important point from Ashutosh experience sharing कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड एग्जामिनेशन के टाइमिंग में क्या है, वो बहुत बिगेस्ट मैटर करेगा। अगर होता है ना कि जैसे कंटिन्यूअसली आप क्वेश्चन लीव करते जा रहे हैं, तो वहां से डिमोटिवेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन जो है आपको जो है ना काफी कूल रहना है, और फिर रिजल्ट आपका बेस्ट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तनिक भी आपको नहीं सोचना है कि हमारे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली मिसिंग होते जा रहे हैं, हमसे सॉल्व नहीं होता जा रहा है। तो उससे होगा क्या कि अब 65 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन में जो है ना आपको प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, अगर पहले से ही डिस्टर्बेंस आपके माइंड में क्रिएट हो गया तो। एनी हाउ जो है ना, चाहे कितना भी क्वेश्चन आप लीव क्यों ना कर दिया हो, आपको किसी भी कीमत पर जो है ना डीमोटिवेट नहीं होना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप माइंड में इसको जरूर रखिएगा, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट All India Rank 3, Shailesh Khote. Shailesh? Hello, am I audible, sir? Yes. So, hello everyone, I am Shailesh Sampath Khote from Sangli, Maharashtra. तो मैंने मेरा बीटेक डॉक्टर नसर शिंदे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग राहुरी से कंप्लीट किया है। अभी मैं निटी मुंबई में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ।
सो मैं मेरे टॉक को अभी 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. फर्स्ट वन विल बी द माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इन द लास्ट 1 month एंड द सेकंड वन विल बी द हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन पेपर. सो पहले बताना चाहूंगा कि आपके पास अभी देखो 1 महीना भी नहीं बचा है, लगभग 15-20 दिन बचे हैं. तो इस पीरियड में जो मेरा स्ट्रेटजी था वो था कि अब तक मैंने मेरे पूरे मॉक और जो भी प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन पेपर थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे. तो मेरा इस 20 दिन का स्ट्रेटजी था कि मुझे जितने भी सारे फॉर्मूलेज पता है, जितने भी सारी कंसेप्ट्स पता है, उनको रिवाइज करना है. जस्ट तुमको ये नहीं करना है कि जाके सीधा फॉर्मूला जाके पूरा रट लो. पहले आपका थिंग ये है कि आपको वो कंसेप्ट पहले निकालना है और उस कंसेप्ट के बेस पे जो जो फॉर्मूलाज आपको पता है उनको याद करना है. क्योंकि आपको अगर एग्जाम में इन केस कि आप 5-6 क्वेश्चन लगा रहे हो, वो आपसे नहीं आ रहा है, 7वां क्वेश्चन इजी है, उसका वो सीधा फॉर्मूला बेस आ रहा है, बट क्या होगा कि आप 5-6 क्वेश्चन पहले नहीं लगा पाए तो आपको क्या होगा, मोरल डाउन होगा, आप शायद फॉर्मूला भूल सकते हैं. लेकिन आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं उस टाइम पे. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको सीधा फॉर्मूला जाके रटना नहीं है, आपको पूरा कंसेप्ट पहले समझ लेना है, फिर कंसेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी सही से कर लेना है. तो ये एक बात हुई. तो सेकेंडली ये बोलूंगा कि ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे आप सब लोग मॉक दे रहे होते हैं और सबको पता होता है कि अपना रैंक कितना जा रहा है. सो इस टाइम पे आपको अपने रैंक पे फोकस नहीं करना है, इस टाइम पे आपको अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है. क्योंकि एट द एक्चुअल टाइम ऑफ गेट एग्जाम, सो देयर आफ्टर दैट no one will show you that your rank, so it depends upon the result. So firstly you have to just focus on your preparation right now. रिजल्ट के बारे में मत देखो आपका रैंक कितना आ रहा है, ये भी मत देखो अभी, क्योंकि आपका जो रैंक आ रहा होता है ना वो आपका बस कॉन्फिडेंस गेन करता है. उसी कॉन्फिडेंस को लेके आपको आगे चलना है और एक गेट एग्जाम को अपीयर करना है. सो मैं प्रिपरेशन के बारे में इतना ही बताऊंगा कि ये 20 दिन जो है इसमें आप कॉन्फिडेंट रहे और पूरा आपका जो आपने अभी तक प्रिपरेशन किया है उसको 1 बार या 2 बार रिवाइज कर ले. अगर आप इसके बारे में बात करें कैसे आपको गेट मतलब क्वेश्चन पेपर अप्रोच करना है, तो मेरा स्ट्रेटेजी था कि मैंने ऐसे डिसाइड नहीं किया था कि मुझे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर जाके 2 मार्क के सॉल्व करने हैं, फिर जाके मतलब पहले एप्टी करना है, लास्ट में एप्टी करना है. मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि जो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो एप्टी आ रहा है तो मैं एप्टी करना है, फर्स्ट क्वेश्चन मैथ आ रहा है मैथ करना है, या कौन सी भी डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट से कौन सा भी आ रहा है तो वो करना है. तो मैंने ऐसे डिसाइडेड नहीं किया था कि मुझे 1 मार्क 2 मार्क जैसे मैंने वो नहीं किया था. तो इसका फायदा ये होता है कि आप जो है ना लगातार क्वेश्चन लगाते जाते हो और आपको वो नहीं करना पड़ता. मतलब गेट पेपर में कैसे होता है कि सारे क्वेश्चन सफल रहते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं रहते कि पूरा 1 मार्क का आया तो एंड तक 1 मार्क का आएगा, पूरा 2 मार्क का आया तो एंड तक 2 मार्क का आएगा. सफल रहता है तो क्या होता है ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि 1 मार्क की क्वेश्चन कहाँ पे है, 2 मार्क की क्वेश्चन कहाँ पे है. तो आप लगातार सॉल्व करते जाइए. अगर आपको लग रहा है कि आपके 6, 7, 8 क्वेश्चन लगातार नहीं बन रहे हैं तो आपको बस इतना करना है कि अपना मोरल डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है. क्योंकि आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास हार्ड क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन पेपर में इजी क्वेश्चंस भी होने वाले हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना है. और पूरा जितना आपको 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे ना तो ध्यान में रखना कि 9, 10, 11 हमको आने वाला है. तो उस हिसाब से आपको थ्रू आउट द एग्जाम बस कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रहना है. और जब भी आपका ये होगा ना कि आप किसी क्वेश्चन को लगा नहीं पा रहे हो, 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, तो 6 क्वेश्चन में आप गलती करने की कहाँ पे होता है कि आप कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, गेट कैलकुलेटर, वहां पे सिली मिस्टेक्स होने की संभावना होती है क्योंकि आप पहले से डिस्टर्ब रहते हैं कुछ लोग, और फिर कैलकुलेशन में एरर, ये सब सिली मिस्टेक जो है ना इसको जितना ज्यादा हो सके ना उतना अवॉइड करने की कोशिश करना है. सो बस इतना ही बोलूंगा, बाकी तो सब लोग बोल ही चुके हैं. Thanks, Salis, for sharing your experience. And now I invite All India Rank 4, Sudhir Kumar. Good evening, everyone. My name is Sudhir Kumar, and I am presently pursuing my MTech from IIT Bombay. पहले मैं बताता हूँ, मतलब हाँ, सब लोग मतलब एग्जाम का ड्यूरिंग एग्जाम क्या किए, एग्जाम का पहले क्या किया. मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था. मेरा एग्जाम का 1 महीना मैं प्रिपरेशन सब सही चल रहा था, रैंक भी अच्छा आ रहा था, सब सही हो रहा था. लेकिन 1 महीने पहले मेरा ऑफलाइन में एग्जाम चल रहा था मेरा, तो मेरा 20 दिन पूरा मतलब पढ़ाई बर्बाद हो गया था. मैं गेट का प्रिपरेशन खाली मैं सेमेस्टर का देख रहा था, तो उस टाइम मेरा 20 दिन पूरा छूट गया था कि फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए भी टाइम नहीं था. और ये होते होते जनवरी 10 आ गया. जनवरी 10 के बाद मैं जब मॉक टेस्ट लिखने गया तो मेरा रैंक बहुत पीछे आ रहा था, रैंक भी पीछे आ रहा था, फॉर्मूला भी भूल गया था. तो मैं तब भी मतलब एग्जाम देने का ट्राई कर रहा था, फिर वही हो रहा था. तब मैं क्या अप्रोच किया, तो जितना मैं फॉर्मूला कॉपी था मेरे पास, मैं बनाया हुआ था,
तो ईच एंड एवरी फॉर्मूला का एक एक क्वेश्चन ढूंढा, इस फॉर्मूला में मैं क्वेश्चन सोच पा रहा हूँ कि नहीं। कमिंग टू कोई क्लच का एक क्वेश्चन हुआ, क्लच का सर पढ़ा है एक फॉर्मूला यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, तो उसका रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो मैं विजुअलाइज कर रहा था, मैं हाँ इस क्वेश्चन ऐसा रहता है, इसका आंसर ऐसा, ऐसा करके मैं एक 10 दिन में सब टाइप का क्वेश्चन, जो सब टाइप का जो फॉर्मूला था मेरा बुक में, सब टाइप फॉर्मूला का एक एक क्वेश्चन में करने के लगा। उसके बाद ये तो पहले कल ये 10 दिन में मेरा हो गया, मतलब जन 10 से जन 20 का अंदर ये हो गया। और मैं सेम टाइम जो भी मैं उसके बाद मॉक टेस्ट भी दे रहा था, मेन हुआ तुम कैलकुलेटर, जो ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करो, उसका एमएस एमसी ये जो कुछ रहते हैं उसको मतलब फंक्शन को यूज करो, क्योंकि उधर एक्यूरेसी क्या होता है, तुम फाइनल में क्या आएगा, तुमको जब एग्जाम लिखोगे राउंड टू डेसिमल 2 डेसिमल 3 ऐसे बोल के आता है। अब जब तुम मतलब उसमें 83.333 आएगा और तुम उसको मतलब उसका 2 राउंड लेके उसको डिवाइड करोगे तो आंसर गलत आ जाता है। उसको तुमको उधर एमआर एमएस बोलिए ऑनलाइन में रहता है, उसको यूज करना चाहिए, उसको स्टोर करना रहता है उस वैल्यू को, उसको थोड़ा सीखो, क्योंकि उसमें तुम्हारा एक्यूरेसी करेक्ट रहेगा, जो भी करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो एक्यूरेट रहेगा। और जो लास्ट 10 दिन बोल रहा हूँ मैं, जनवरी 20 से जनवरी 30 का बीच में मैं मॉक टेस्ट खाली जो पहले से दिया हुआ मॉक टेस्ट हुआ कि मतलब जो नंबर ऑफ टेस्ट दिए थे 60 के कितना दिए थे, ईच एंड एवरी टेस्ट का जो फिर रिवाइज करते गया मैं, उसका सॉल्यूशन देखते गया, क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते रिवाइज करते गया। तो मेरे को तब एक कॉन्फिडेंस आया। मैं थ्योरी के लिए उतना कुछ नहीं देखा था, मैं खाली प्रॉब्लमेटिक देख रहा था, थ्योरी कभी मैं पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था, खाली प्रॉब्लमेटिक में मैं डिपेंड करता था और कॉन्सेप्ट पे देख रहा था। वैसे वैसे करके मतलब जब जनवरी 30 आया मेरा मैक्सिमम लगा कि सब हो चुका है, तब भी लेकिन रैंक अच्छा आता नहीं था, मतलब कॉन्फिडेंस आता था लेकिन रैंक अच्छा आता नहीं था, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं होता था। एट लास्ट तक मैं टेस्ट सब लास्ट तक मैं देता रहा टेस्ट, एक टेस्ट ऐसा आया कि मतलब उसमें अच्छा खासा हो गया, तब मेरा कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट हो गया। मैं लगा कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ लेकिन आ क्यों नहीं रहा है मार्क, तो उस टाइम मेरा क्या कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया, नहीं अच्छा पढ़ रहा था, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। और मैं और एक तो बात बोला, लास्ट जो 7 दिन थे मैं उस टाइम में बाकी इतना नहीं पढ़ा था, मैंने देखा था मैं मैथ्स एंड एप्टीट्यूड लास्ट 7 दिन में, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड लास्ट 7 दिन में देखा था मैं, लास्ट 4 and 5 डेज में। और बाकी गेट एग्जाम का 1-2 दिन पहले तो मैं बोलता हूँ पूरा रिलैक्स ही रहो, पढ़ाई मत ही करो, मतलब एक दिन पहले तो मैं नहीं किया था, एक दिन पहले मतलब माइंड को जितना रिलैक्स करो, तब भी मतलब टेंशन आता रहता है, रिलैक्स करो आराम से, जितना जल्दी पाए सो जाओ और एग्जाम में अच्छा से कॉन्फिडेंट दो। और एक तो एग्जाम के लिए मैं अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करा कि मैं ये पहले करूंगा वो पहले करूंगा, खाली इतना था एप्टीट्यूड पहले कर लूंगा। लेकिन हमारा टाइम क्या हुआ था, पहले अपना सीनियर बैच तक क्या होता था, 1 मार्क का सब 25 आ जाते थे, उसके बाद 2 मार्क का क्वेश्चन आते थे। हमारे टाइम ऐसा नहीं आया था, 1 मार्क का 2 मार्क का सब मिंगिल आया था, मतलब पहले 2 मार्क का आता था, उसके बाद 1 मार्क का आता था, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं था। 1 मार्क 2 मार्क एमएसक्यू भी बोले थे, लेकिन एमएसक्यू नहीं आया था, लेकिन ये 2 मार्क 1 मार्क ऊपर नीचे करके सब कुछ आ गया था, भर के थे क्वेश्चन, तो इसमें डिस्टिंग्विश करना भी डिफिकल्ट होता था। और मेरा क्या हुआ था, पहले क्वेश्चन 2-3 थे, मतलब क्या पता है वो मतलब सबका रैंडमाइज हो गया आता है, किसी को मतलब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं पहले, तो उसमें टाइम ज्यादा ले लेता है, तो उसी में तुम मैनेज करना शुरू करोगे, तुमको लास्ट को टाइम रिव्यू करने के लिए मिलेगा। तो इतना ही मैं कहूंगा, डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। Thanks, Sudhir. Now I invite Ram Prakash, All India Rank 8, GATE 2021. Hello, sir. Am I audible? Yes. Hello, guys. Hello, everyone. My name is Ram Prakash, and I am from College of Agriculture Engineering, Bapatla, Andhra Pradesh. And me and Sudhir were batchmates for the last 4 years. We both studied in the same college. And regarding my preparation, जैसे सुधीर ने बोला, so हमारा बहुत hectic schedule चल रहा था जनवरी में. So believe it or not, I have given my first mark around this day last year. मेरे पास बस 15 ही दिन ही बचा था सारे मार्क्स करने के लिए। उस टाइम पे ट्रांसईसी का 6 मार्क हुआ था, जैसे आरके सर ने मतलब उस टाइम पे कंडक्ट किया। मैं टेलीग्राम में देख रहा हूँ इस बार मतलब 6 से ज्यादा हुआ था आपका मार्क। Ram Prakash, we have completed 8 mock test. ट्रांसईसी फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया 2015 में, तो मैं वहां से जो है ना उसको ऑफलाइन लेके चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन से पहले, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन इंड्यूस्ड लाइव सेशन है हमारी, ये लॉकडाउन से पहले राम प्रकाश की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। राम प्रकाश जिस बैच में थे, राम प्रकाश सुधीर, इनकी क्लासेस जो ना 5 मंथ में स्टार्ट हो गई थी लॉकडाउन से पहले। हमें लोग पता नहीं था कि लॉकडाउन आने वाली है, तो विथ प्लान ये स्टार्ट हुआ था। दिस इज नॉट कोरोना इंड्यूस्ड लाइव सेशन। यस, कंटिन्यू राम प्रकाश, कंटिन्यू। वो एडेड एडवांटेज था हमारे लिए। हाँ, आप लोग के लिए लाइव नया था, बट जो है ना ट्रांसईसी रन कर रहा है आपका 2015 से। दिस इज अभी हमारा जो ना 8th बैच है। चलिए स्टार्ट कीजिए राम प्रकाश, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, मेरे पास अभी 15 दिन ही बचा था और मैं मतलब सोच रहा हूँ, मतलब अभी तक मैंने सेमेस्टर का ही एग्जाम दे रहा था, मार्क कुछ नहीं किया था।
बट बिलीव मी मेरा एग्जाम था February 7 के आसपास था. मैंने February 5 और 6 में भी एक मॉक दिया था जिसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था. उससे पहले कोई भी मॉक मैं लिख दूंगा मेरा अच्छा रैंक अच्छा नहीं था. तो लास्ट डे मतलब वन डे मतलब चेंज माई लाइफ ऐसा मैं कह सकता हूँ. और बिलीव मी और नॉट मतलब जब मैं एग्जाम सेंटर में कंप्यूटर स्क्रीन मेरे सामने था तो उस टाइम मेरे को बहुत टेंशन आ रहा था. काउंटडाउन देख रहा हूँ 3 2 1 आ रहे और मेरा मतलब दिमाग खराब हो गया. बहुत कंफ्यूज हूँ मैं. और मैंने लिटरली फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स मैंने वेस्ट किया था. और मैं अपना जूनियर्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ, इट इज परफेक्टली फाइन एंड ऑलराइट टू वेस्ट स्टार्टिंग 5 to 10 मिनट्स इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल. जस्ट आंख बंद करो, सांस ले लो और टेक द हेल्प ऑफ इन्विजिलेटर इफ यू आर इन एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द पासवर्ड. समटाइम्स होता था अपना डेट ऑफ बर्थ और कोई मतलब गड़बड़ करते हैं इन्विजिलेटर वाले और सिस्टम का खराब भी हो सकता था. बट मतलब अगर आप ठीक नहीं है तो टेक टाइम फॉर 5 मिनट्स. मतलब जो भी आप करें तो इतना महीने से 10 महीने 12 महीने से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब याद रखना और फिर फ्रेशली स्टार्ट करना. एंड बिलीव मी और नॉट मेरा एग्जाम 2.5 आवर में खत्म हो गया था और मैंने अपने आप को लगभग आधा घंटा दिया था फिर दोबारा रिवाइज करने के लिए. और मेरा एक ही स्ट्रेटजी था, मतलब यही है सब लोगों के लिए मैं यही मास्टर स्ट्रोक कर सकता हूँ क्योंकि you should choose what question you should attempt and what question you should leave. मतलब अगर आपको मतलब लेंथी लगा और तुमसे नहीं हो पाएगा तो immediately you leave that question and go to the next one. And you can mark for review as well. दोबारा ताकि आप दे सकते हो last 1 hour, half an hour depends upon your strategy. And finally, most important thing, please take care of your physical and mental health because it is very important to keep you in a very good mental and physical space. ये बहुत मैटर करता है. और लास्ट 2 वीक्स में डू वॉट एवर यूर माइंड सेज. ऐसा नहीं कि मैं भी सुधीर के सामने हूँ, सुधीर का अलग स्ट्रेटजी था, मेरा भी अलग स्ट्रेटजी था. एंड एक दिन पहले हम दोनों मतलब एक ही रूम पे थे. सुधीर का मतलब अच्छे से नींद में नहीं हो रहा था. कल हमारा गेट एग्जाम था लेकिन एक दिन पहले उसका मतलब अच्छे से नींद में नहीं सो पाया था. तो लेकिन मैंने अच्छे से आई स्लेप्ट लाइक ए बेबी लिटरली. वो उसका स्ट्रेटजी था. सुधीर ने मतलब लगभग 12 PM के ऊपर उठ के मतलब फोन का फ्लैश लाइट ऑन करके मतलब फॉर्मुलास पढ़ रहे थे मेरा रूम पे. वो मतलब उसको ऐसा लगा था लेकिन उसका स्ट्रेटजी वही था. मैं मतलब लिटरली आई वाज स्लीपिंग लाइक एनीथिंग, like nothing is going to happen tomorrow. So please follow your mind whatever you say and please keep yourself in a very good mental and physical space. That's what I need from you guys because you have to tell a story to your juniors that this is what we did 1 year ago. So for that it is very important to keep yourself in very prime mental space. Physical space तो आप कह नहीं सकते but it is very important to keep yourself in a very good space. Thank you. Thanks, Ram Prakash. Now, Harshal Vanjari. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Hello, guys. I'm Harshal Vanjari from Dr. Banjarrao Deshmukh Agriculture University. Now, I'm currently pursuing first year MBA from NITI. Okay, so guys, our conversation will be bilingual. तो सभी लोगों ने अभी जैसे सीनियर्स हो, बैचमेट मींस 2020 पास आउट ग्रेजुएट्स और 2021 पास आउट ग्रेजुएट, सो ऑल दे हैव टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स मींस हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस व्हाइल इन मॉक्स एज वेल एज इन रियल क्वेश्चन पेपर. सो मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे अप्रोच करता था, मींस हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन रियल क्वेश्चन पेपर. तो मेरा जो एटमॉस्फेयर था उस टाइम का, मतलब कॉन्फिडेंस हम उसी दौरान हो सकते हैं जिस टाइम पे हम वो रियल लाइफ सिचुएशन का हैंडल कर सके या फिर उस सिचुएशन पे पहले गए हो. सो मेरा जो स्क्रिबल पैड हो उसको मेंटेन करना या फिर कैलकुलेटर का किस पोजीशन पे रखना है, माउस का किस प्रकार से यूज करना है, ये सब चीजें पहले से ही, मतलब जब फर्स्ट डे हो प्रिपरेशन या फिर मॉक देना स्टार्ट हो फर्स्ट मंथ से, सो ये सब चीजों को मैं लिख के रखता था कि यस दिस टाइम आई मेड दिस मिस्टेक मींस व्हाइल यूजिंग माय माउस or while using calculator that I made this mistake while writing on a scribble pad. क्योंकि कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि सिली मिस्टेक से हमारा क्वेश्चन वो हम अटेम्प्ट कर नहीं पाते, देन हम नेक्स्ट राउंड पे जब आते हैं सेम क्वेश्चन पे तो हमें वहाँ पे टाइम बचाना होता है, तो हम जो सेम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं स्क्रिबल पैड पे, तो उसी से हमारा टाइम बचता है कि हम उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे मेरा गलत हुआ है, सो दैट मैं वहाँ पे टाइम बचा लूँ और मैं आंसर उसको करेक्ट कर लूँ. सो these are the things, silly things you can use while writing your question paper, and you can minimize your time while answering the questions. And yes, all the approaches and all the strategies are well said by our seniors and my batchmates and all. So I think nothing required from my side. All these things are good,
And yeah, that's that is from my side. Thank you, sir. Thanks, Harshal Banjari. Harshal Banjari has scored All India rank 9. Okay. Now I invite Anjali Kumari. Anjali? Yes, sir. Am I audible, sir? Yes. Good afternoon, everyone. Hope you are doing well and good in health. So my name is Anjali Kumari and I have graduated from SWAT Prayagraj and currently I am pursuing MBA from NITI Mumbai. And मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं. तुम लोग भी बोर हो रहे होगे सुन के सेम. तो मैंने पहले ही वीडियो बनाया है कि हम लोग को कैसे प्रिपेयर करना है लास्ट 1 मंथ. एंड सो मैं अभी जस्ट फोकस करूंगी कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करनी है. तो 3-4 है जो अपने आप को हमेशा याद रखना है कि हमें हमेशा मोटिवेट रहना है, निगेटिव कम करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है. और पेपर में जो मैंने फॉलो किया था, लाइक मेरा ये नहीं था कि हम 1 या 2 मार्क्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं. और ये मेरे लिए अच्छा हुआ था क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सफल करके आए थे 1 और 2 मार्क्स का. और हमने प्रैक्टिस की थी 1 मार्क्स का पहले बनाने का, फिर 2 मार्क्स का. तो वहां पे मैंने ये किया कि मैं ऐसे भी करती हूँ कि मैं 1 घंटे से मतलब या 1 घंटे 15 मिनट तक ऐसे अपने आप को रखती हूँ कि मैं एक बार पूरा पेपर गो थ्रू हो जाऊंगी. उसमें क्या करती हूँ, जो हमें पेज और वहां पे पेन मिलता है रफ करने के लिए, उसमें मैं एक कॉलम बनाती हूँ. फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं वो बना लेती हूँ. एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो तुम्हारा टाइम ले रहा है, लेकिन तुमको लगता है कि ये बन जाएगा, बट वो फिर भी 3 मिनट 4 मिनट ऐसे तुम्हारा टाइम जा रहा है. तो जस्ट नोट डाउन दैट क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन अगर मेरे लास्ट में टाइम बच जाते हैं तो बनाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे टफ होंगे जो बनाना ही नहीं है. और टाइम अगर पर्टिकुलरली डिवाइड करो तो हाँ, ऐसे जैसे हमारे और भी बैचमेट्स ने बताया कि हाँ हमें ये क्वेश्चन पे 3 मिनट देना है, 1 मिनट देना है, तो उतने हर क्वेश्चन पे होते हैं. पर उसमें से क्या है, कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने ही छोड़ने होते हैं जो हमसे बनेगा नहीं. तो बेटर है कि उसको हम इस क्वेश्चन पे यूटिलाइज करेंगे बाद में, जो हमसे बन रहे थे पर छूट रहे हैं. तो मैं उस क्वेश्चंस को मैं मार्क करती जाती थी स्टार्टिंग से कि हमें ये क्वेश्चंस दोबारा रिवीजन करना है और इस नंबर्स के क्वेश्चंस को हमें बनाने हैं. तो आफ्टर 1 आवर्स मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया, हाँ ये क्वेश्चंस मुझे बनाना है, तो फिर वो मैं बना ली. तो ये मेरे लिए बहुत सही था. मेरा एक मिस्टेक ये था कि मैंने निगेटिव बहुत कर दिए लास्ट में, जो नहीं होता था, जनरली टेस्ट में भी नहीं होता था मे बी, बट वहां पे मैंने मिस्टेक्स ऐसे की हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना है, मैंने कुछ और लिखा. इंटीजर में आंसर लिखना और हमारा आंसर पॉइंट में आया, मैंने पॉइंट में मेंशन किया. तो जाने से पहले वैसे सर एक पूरा पैराग्राफ लिख के सर ऑलरेडी देंगे तुम लोग को कि क्या क्या फोकस करना है, बट अपना भी स्ट्रेटजी बनाओ कि हमें फूड में जनरली कि हमें फॉर्मूला मिस्टेक नहीं करनी है, हमें कन्वर्जन पे ध्यान देना है. क्वेश्चंस में क्या बोला है, जैसे सीनियर्स ने भी मेंशन किया कि वो रेडियस है, डायमीटर, ऐसे बहुत सिली क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक होता है, इसको नहीं करना है. तो ये सब चीजों पे फोकस करना एग्जाम के टाइम. और अभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम फॉर्मूला याद तो कर रहे हैं बट भूल जा रहे हैं, ये मुझे मैसेज आती है. तो उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि तुम लोग हर फॉर्मूला को नहीं भूल रहे हो, पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूला है जिसको कि भूल जा रहे हो, तो जस्ट एक पेज लो और अपने वॉल पे चिपकाओ जहां तुम पढ़ते हो और उस फॉर्मूला को लिख दो. तो जितने बार उस रूम में जाओगे एटलीस्ट उस फॉर्मूला को देखोगे तो वो याद हो जाएगा देखते देखते. मीन्स कि वो फॉर्मूला ज्यादा रिविजन उसको चाहिए क्योंकि वो बार बार भूल रहे हो. तो उसके लिए तुम वैसे कर सकते हो, तो फॉर्मूला याद रहेगा. और कुछ बच्चे भी ये भी मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरा एमबी प्लॉ, ड्राइंग और ट्रैक्शन जैसे कुछ चैप्टर्स है वो बन नहीं रहा, वो छूट रहा है. तो ज्यादा नहीं फोकस करना है. अभी तुमने जो कर लिया ना उस पर रिविजन करो क्योंकि ये लास्ट है और सबने यही सेम सजेस्ट किया है, तो ये करो. उतना टाइम नहीं देना अभी टफ चैप्टर पे, उसको तुम ऑलरेडी कर चुके हो. जो जितना आ रहा है तुम्हें बस उसको क्विक रिवीजन पे रखो. अब टेंशन लेना ही नहीं है कि हमारा ये नहीं हुआ या हम ये अब भी कर सकते हैं क्या, मॉक कितना दें. तुमको जितना लगता है कि अच्छा है वो करो. देखो ऐसे भी सब जानते हो, सब कहते हैं सुनो सबकी और करो दिल की. तो ये फंडा यहाँ पे अप्लाई होता है क्योंकि अब तक तुमने 7-8 लोगों के सुन चुके कि हमने ऐसे अप्लाई किया, हमने ये किया, हमने ये किया. मेक योर ओन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी कि तुम कितना कर सकते हो. ठीक है, तो अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने पे टाइम दो, फॉर्मूला बनाओ कि अपने आप को हम कैसे रिलैक्स करेंगे एग्जाम में, कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे और कैसे कम मार्क्स कैसे कम निगेटिव करेंगे और मार्क्स ताकि हमारा बहुत अच्छा है. तो ये बहुत सिंपल है. और मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ कि जिसको प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ नीति का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, हमें गेट के बाद अप्लाई करना है, पहले अप्लाई करना है, तो कल ग्रुप में वैसे क्लियर कर दिया गया था कि अभी फॉर्म का डेट एक्सटेंड होगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है. अभी गेट दो,
उसके बाद जैसा होगा हम अपडेट दे देंगे, इस ग्रुप में अपडेट दे ही देंगे कि क्या होता है, तो उसका भी किसी को टेंशन नहीं लेना है कि नीति का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मेरा छूट जाएगा, ऐसे भी बच्चे बोल रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अभी बस गेट पे फोकस करो, कहीं ध्यान ही नहीं देना है, नीति इधर उधर कुछ नहीं, अभी पहले अपना रैंक लाओ अच्छे से। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप तुम लोग सब बहुत अच्छा करोगे। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सर। यस, तो लास्ट में मैं 1 मिनट में सबको समराइज करके इस सेशन को एंड करता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले अपनी स्ट्रेटजी पर वर्क करें, आप जो भी आपने स्ट्रेटजी बना लिया है। हाँ, एडिशनल आपको क्या एफर्ट लगानी है, किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उसको इंटेलिजेंटली आप उससे सप्रेस करें। ये इमोशन सबके साथ आ रहे हैं, आपके सीनियर के भी जो है ना एक्सपीरियंस हमारे साथ लास्ट ईयर से भी है कि उस टाइम में जो है ना कैसे सबके फीडबैक आते थे, वो लोग क्या बोलते थे कि सर किस तरह की फीलिंग आ रही है। तो जैसा आपके साथ जो फील हो रहा है इस टाइमिंग में, सेम फीलिंग आपके सीनियर्स के भी साथ था और उसके बाद भी उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया। मैंने आपके सामने में AIR 1 2 3 4 8 9 और भी लोग थे लेकिन मिसिंग थे, उनके कॉल नहीं उठ पाए थे इसलिए वो नहीं आ पाए, यानी कि नंबर बदल चुके हैं साल भर होने के। 7 को भी मैंने कॉल लगाया था और भी स्टूडेंट थे, नहीं आ पाए वो, बट सफिशिएंट है ये जो आइडिया शेयरिंग था, व्यू जो शेयरिंग था, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इससे यही क्लियर होता है कि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है लास्ट मोमेंट वाली। तो आप जो है ना इसको अपने बुद्धि से इसे दबा के रखें और कुछ भी सोचे बिना, इसीलिए मैं आप लोगों को फोर्स भी नहीं करता कि आप लोग टेस्ट ज्वाइन करो। अदरवाइज जब प्रिपरेशन होती थी टॉपिक वाइज हम लेते थे तो उस समय में थोड़ा मैं हार्ड होता था, अगर आप मिस होते थे तो कॉल आपको जाती थी या आपकी जो ना टेम्पररी कोर्स को डिसेबल कर दी जाती थी। लेकिन लास्ट 2 मंथ से मैं ऐसा कर नहीं रहा हूं। रीजन, क्योंकि अब कहने से कुछ नहीं होगा, अब जो आप अपना स्ट्रेटजी मेंटेन करके रखे हुए हैं उसी पर चलना जरूरी होता है। इसलिए हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का ये जो है ना बाइंडिंग जो एक्शन होती है नहीं होती आपके लिए। आप टेस्ट दो, इट्स ओके, नहीं दो कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेरे कहने से अब जिस इमोशन की वजह से टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप अपने शेड्यूल को फॉलो करते रहे। टारगेट यही है कि टोटल के टोटल फार्मूला जिस एरिया को आपने कमांड कर रखा है, टोटल फार्मूला आपके जो है ना माउथ पर होना चाहिए और जब भी क्वेश्चन देखे वो विदाउट जो है ना हेजिटेशन वो फार्मूला प्रिंट हो जाए आपके रफ बुक में, तब जाकर जो है ना आप अच्छा कर पाएंगे। तो विदाउट जो है ना फियरिंग आप जो है ना मॉर्निंग में जगने का प्रयत्न करें। वो रात भर पढ़ने वाला सिस्टम को छोड़ दीजिए, टाइमिंग फिक्स होता है, दिन में पढ़े या रात में पढ़े वही होता है। बट बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो नाइट में जो है ना सोना और मॉर्निंग में जो है ना उठना और उस समय फार्मूला रिवीजन करना वो परफेक्ट है। लेस टाइम उसमें कंज्यूम होगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है ना ज्यादा होगी, वो ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहेगा। तो ये सब पॉइंट को भी ध्यान रखिए, क्योंकि 5-6 नंबर आपका जो है ना डिस्टर्ब होता है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि मैं भी आपके साथ वर्क करता हूं, इसलिए उस वर्क से भी हमें एक्सपीरियंस है कि यस अगर आप जो है ना रात को सोते हैं मॉर्निंग में जगते हैं तो काम दिन भर करते हैं, वो उसकी इफिशियंसी डिफरेंट होती है। तो ये सबको फॉलो करिए, 2-4-5 नंबर इधर से बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप माउस यूज नहीं कर रहे होंगे और मोबाइल फोन के कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे तो अभी भी समय है, सुधर जाइए, 15 नंबर आपका लेकर वो जाएगा, क्योंकि आपको वहां पर माउस से जो ना वर्चुअल कैलकुलेटर ऑपरेट करनी है और आंसर को फाइंड आउट करना है। तो 10-15 नंबर वो लेके जाएगा अगर अभी भी अगर आप सुधर नहीं रहे हैं तो। आपको इसको फॉलो करना है और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है, सीनियर से जो ना आपको टॉक करना है, तो आप जो ना हमसे नंबर मांगेंगे उस पर्टिकुलर सीनियर का, सब उनका नंबर आपको दे दिया जाएगा एंड डेफिनेटली वो आप लोग को जो है ना किसी भी तरह का ये डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई डिस्कस डाउट है तो वो आपको जो है ना क्लियर कर देंगे। सब आपके सीनियर हैं और अच्छे हैं, सब जरूर आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू एवरीवन। और मैं फिर से आपके सीनियर लोग को बोलना चाहूंगा कि जो भी इस सेशन को ज्वाइन किए थे और आपने आइडियाज को शेयर किए, अपने प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी को शेयर किए, उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय आप लोगों के साथ शेयर किया है विदाउट जो है ना एनी प्रॉफिट एंड बेनिफिट। तो इसलिए जो है ना हम सबको मिलकर उनको धन्यवाद देना चाहिए। सो थैंक यू ऑल एग्रीगेट सुपरस्टार, जो आपने इतना अच्छा अचीवमेंट पाया है, इतने अच्छे रैंक प्रोड्यूस किया है, और काजल एंड अश्विनी ह्यूज के लिए उनके जबरदस्त प्लेसमेंट के लिए। काजल की प्लेसमेंट अगर शेयर करना थोड़ा सा मैं ऐसे कट कर दूंगा इसको, 27.2 लाख पर जो है ना इनका प्लेसमेंट हुआ है नीति मुंबई से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। इससे बड़ा जो है ना बड़ा मतलब इससे बिग अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है। अभी और है, कभी और सेशन में हम लेकर आएंगे, 40 वाले को लेकर आएंगे,
प्लान था हमारा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोगों को लेके आते हैं, तो फिर जो है ना हमारा मेन टारगेट जो था करंट वाला आइडिया शेयर करवाना था आपको, इनके स्ट्रेटजी क्या थे, इनके जो है ना प्लान क्या थे, कैसे इन्होंने टैकल किया, इसलिए मैं उन लोगों को लेकर आया। अदरवाइज और सक्सेसफुल हमारे जो एग्री स्टार्स है उनको अदर सेशन में लेकर आएंगे, वो आफ्टर गेट होगी। चलिए यही पर इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, और आप लोग इस रिजल्ट बेस्ट आए और आपके माइंड कूल रहे, और फाइनली जो है ना आप अपने गोल को अचीव करें। सो थैंक यू एवरीवन, वी स्टॉप दिस सेशन हियर।